Hello students. So in our last video we have started with friction. Now today let us continue with friction only. Okay. So today we are going to see mainly about work done against friction. Now obviously जब भी हम लोग कोई भी work करते हैं, that means when we are pushing a block or we are pushing a body, we are doing some amount of work. Work done मतलब क्या होता है? When we apply force and because of that force some displacement takes place. But we also know that whenever we try to move a body over the surface of another body, then there is friction. And what is the function of friction? The function of friction is to oppose motion. Friction क्या करेगा? Motion को oppose करेगा. So obviously हम लोग को जो work done करना होगा वो किस तरह करना होगा? Such a way that we can overcome friction. है कि नहीं? We will overcome friction and then only we will do the work. So here we are mainly going to see about work done against friction. Okay? So case 1. Work done in moving a body along horizontal. Okay. Now पकड़ लो हाँ. Say this is a surface and on this surface we have a block. So ये block का जो weight होगा वो किस तरफ होगा? नीचे की तरफ mg. And here we will have normal reaction R. Now suppose we have applied force in this direction. Okay, we have applied force in this direction. Now if we apply force in this direction, obviously in the opposite direction there will be force of friction. Yes or no? There will be force of friction. And suppose because of the applied force the body moved from here to here. This body moved from here to here by a distance say s. Okay, we applied a force. Because of the applied force the body moved from here to here by a distance s. So obviously जब body move करता है तो कौन सा friction act करता है? Kinetic friction, Fk. Yes or no? Now we have to find that to move this body from here to here, how much work we have done by overcoming the friction. Okay. So what is the formula for work done? The formula for work done is force into displacement. So here also we know that work done is equal to force into displacement. Yes or no? ये होता है work done का formula. Now बात समझो हाँ. अगर हम लोग को ये ब्लॉक को मूव करना है तो मिनिमम कितना फोर्स देना होगा? मिनिमम इतना फोर्स देना होगा जो हम लोगों को फ्रिक्शन का फोर्स ओवरकम हो जाए. अगर हम लोग फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फ्रिक्शन 5 न्यूटन फोर्स है तो हम लोग का जो अप्लाइड फोर्स है, देखो फ्रिक्शन तो डायरेक्टली फोर्स नहीं देता है ना. जब हम लोग अप्लाई करते हैं तब बॉडी को मूव करने के लिए हम लोग को मिनिमम फ्रिक्शन क्या करेगा? बॉडी को अपोज करने का कोशिश करेगा. तो हम लोग को इतना फोर्स तो देना ही होगा जो वी कैन ओवरकम फ्रिक्शन. अगर मैं बोलूं इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन का कैपेसिटी 5 न्यूटन है तो हम लोग को मिनिमम फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन या उससे ज्यादा देना होगा. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन का कैपेसिटी 6 न्यूटन है तो हम लोग को यहाँ पे मिनिमम फोर्स 6 न्यूटन या उससे ज्यादा देना होगा. प्रैक्टिकली 6 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा ही देना होगा. तो वो थोड़ा ज्यादा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 न्यूटन मान सकते हैं. दैट मीन्स टू मूव दिस ब्लॉक फ्रॉम हियर टू हियर एटलीस्ट वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. It should be either equal or more than the force of friction, but at least it should be something more than the force of friction or almost equal to the force of friction. So here we will take that the force is approximately equal to the force of friction. And what is the displacement here? Displacement is s. So displacement हो गया s. क्योंकि देखो maximum we can take anything, but here at least what should be the force? The force should be frictional force. Okay? सो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर, यस और नो, इनटू एस. एंड फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट आर इज इक्वल टू व्हाट? mg, बिकॉज आर एंड mg आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. सो हियर वी कैन राइट देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू mg s.
So this is the formula for work done in moving the block over a horizontal surface. Okay, note it down. Done. Now let us see the second case. Now case 2, work done in moving a body up an inclined plane. Okay, so we have an inclined plane and we have to move the body up with respect to the inclined plane by overcoming friction. So say this is a inclined plane and here we have a block. इसका वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ mg, इस तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन r. We will have two component. R is always balanced by cos component, so r here it will be mg cos component and here we will have mg sin component, and means mg sin theta. Now बात समझो, हाँ हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करना है. That means we have to move this block in the upward direction. So इसको अगर upward direction में मूव करना है, मुझको applied force किस तरफ देना होगा. The applied force should be in the upward direction. If the applied force is in the upward direction, friction will oppose this one, so friction will act opposite to the applied force. So इस तरफ क्या होगा, frictional force. Yes or no? Now अच्छे से देखो, हाँ बात समझो, हाँ ये ब्लॉक स्लाइड करने वाला होगा या फिर ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ होगा और हम लोग को इसको ऊपर लेके जाना है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में दो कंपोनेंट है. एक तो है mg sin थीटा जो इसको इस तरफ हेल्प कर रहा है और दूसरा है फ्रिक्शन जो इसका मोशन को अपोज कर रहा है कि नहीं. तो हम लोग का जो अप्लाइड फोर्स है वो इतना तो होना चाहिए जो ये दोनों फोर्स को ओवरकम कर सके. मतलब अगर mg sin थीटा 2 न्यूटन है और फ्रिक्शन 3 न्यूटन है तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है, 3 + 2 5 न्यूटन. सो हम लोग का जो अप्लाइड फोर्स है वो एटलीस्ट 5 या 5 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. देखो मैं अगर 5.1 अप्लाई करूंगा तो ये ओवरकम होके बॉडी मूव हो जाएगा, बट 5.1 फॉर कन्वीनियंस वी विल टेक हियर दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5. दैट मींस द अप्लाइड फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस फोर्स. ओके, मुझको इतना तो फोर्स देना ही होगा जो ये दोनों कंपोनेंट बैलेंस हो जाए. तो यहां से मुझको R कितना मिल रहा है, देखो R is equal to mg cos theta. Yes or no? R is equal to mg cos theta. And the applied force F is equal to which one? This plus this. That means mg sin theta per plus force of friction. Now mg sin theta, what is the formula for force of friction? Mu r. Yes or no? So applied force F equal to mg sin theta plus mu r. What is r? R is equal to mg cos theta. So applied force F equal to, we can take mg common, it will be how much, mu k cos theta plus sin theta. जैसे नो मैंने ये वाला पहले लिखा, mu k cos theta plus sin theta. So therefore work done in moving this block up of the inclined plane, what is the formula for work done? Force into displacement. Suppose the displacement is s, so here what will be the work done? Force कितना लगेगा, ये वाला mg mu k cos theta plus sin theta into s. So this will be your final equation. Clear? Okay, now let us move on to case 3. Case 3. Now case 3, work done in moving a body not up, down an inclined plane. अगर हम लोग को एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के डाउन साइड में उसको मूव करना है, तो ये हो गया एक इंक्लाइन प्लेन और ये हो गया थीटा. ठीक है, अभी यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है लेकिन ये ब्लॉक स्लाइड डाउन नहीं हो रहा है. पिछला वाला भी जो था ना केस, उसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जो ब्लॉक रखा हुआ है लेकिन ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है. ठीक है,
तो इसका जो वेट होगा वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। ये हो जाएगा mg cos थीटा, इस तरफ हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन R, और इस तरफ हम लोग को मिलेगा mg sin थीटा। नाउ देखो हम लोग को ब्लॉक को किस तरफ मूव करना है, डाउन। तो डाउन अगर मूव करना है, मैं अप्लाइड फोर्स किस तरफ दूंगा, ऑब्वियसली मैं जो अप्लाइड फोर्स है वो इस तरफ दूंगा, है कि नहीं। मेरा जो अप्लाइड फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। अगर अप्लाइड फोर्स इस तरफ होगा तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। नाउ देखो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक कंपोनेंट है mg sin थीटा। पहला वाला में हम लोग को ब्लॉक को इसके ऑपोजिट मूव करना था, तो mg sin थीटा इसको अपोज कर रहा था। लेकिन इस वाला में ब्लॉक को इस तरफ मूव करना है, तो mg sin थीटा इसको मूव करने में हेल्प करेगा, है कि नहीं। देखो बात क्या है, सपोज फ्रिक्शन 5 न्यूटन फोर्स मैक्सिमम कैपेसिटी है रोकने का, और ये जो है अभी इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और mg sin थीटा 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो अप्लाइड फोर्स हम लोग को कितना देना होगा, ये 2 न्यूटन तो हेल्प कर रहा है ना, तो मैं अगर 3 न्यूटन दे दूंगा तो 3 + 2 5 न्यूटन ये फ्रिक्शन को बैलेंस कर देगा, और ये ब्लॉक को इस तरफ पुश करने में हेल्प करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना होना चाहिए, ये 3 न्यूटन कैसे मिलेगा, 5 - 2 दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स माइनस दिस वन। बात समझ में आया कि नहीं। अभी जो mg sin थीटा कंपोनेंट है वो हेल्प कर रहा है ब्लॉक को मूव करने में, तो इसका जो फोर्स है वो लगाने का जरूरत ही नहीं है, तो इसका फोर्स तो अभी माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। सो यहां पे क्या हो रहा है, R = mg cos थीटा, एंड वी हैव अप्लाइड फोर्स F will be equal to how much, frictional force minus mg sin theta, frictional force minus mg sin theta. So F will be equal to how much, what is the formula for frictional force, mu r minus mg sin theta. What is the formula for R, mg cos theta minus mg sin theta. So from here we can take what, mg common, so now it will be how much, mu k cos theta minus sin theta. So what will be the work done in moving down the body inclined plane against friction, it will be force into displacement. What is the force, mg mu k cos theta minus sin theta into displacement s. So this one will be your final answer. Clear? So I hope ये वर्क डन वाला पार्ट क्लियर है। ओके यहाँ पे हम लोग को 3 केस देखना था, तो हम लोगों ने देख लिया। अगर हम लोग को वर्क डन करना है इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर हम लोग को वर्क डन करना है इन इंक्लाइंड प्लेन, इन बोथ केसेस अप एंड डाउन, अगर ऊपर भी लेना है और नीचे भी लेना है। ओके नाउ लेट अस सी वन मोर टॉपिक, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। पहले जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। ओके तो नाउ यहां पे हम लोग के पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, और यहां पे एक ब्लॉक है। अभी ये इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग ने ये जो एंगल लिया वो कुछ इस तरह लिया, जो ये ब्लॉक खुद ब खुद स्लाइड हो रहा है, हम लोग कोई फोर्स नहीं दे रहा है, हम लोगों ने इसको ऐसे 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 करके ऐसे किया, तो ये खुद स्लाइड डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो वेट है वो किस तरफ होगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ। ये वाला क्या होगा, mg cos थीटा, ये वाला हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और ये इस तरफ स्लाइड डाउन होगा बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा। ये जो वेट का जो कंपोनेंट है इस तरफ है, और ये एंगल के वजह से, ये दोनों के वजह से स्लाइड डाउन हो रहा है कि नहीं। तो ये एंगल को हम लोग ऐसे इसको बैलेंस करेंगे कि ये इस तरफ स्लाइड डाउन होगा, और इसका जो स्लाइड डाउन की तरफ ये कंपोनेंट इसको स्लाइड होने में इस तरफ हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि ये अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन है। लेकिन इसका ऑपोजिट टू द मोशन क्या एक्ट करेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं। पहले जैसा सेम ही है, तो इससे अगर डायग्राम मिला तो आर किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। नाउ हम लोग को निकालना क्या है, एक्सीलरेशन। ब्लॉक इस तरफ मूव हो रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, ऑब्वियसली इस तरफ होगा, है कि नहीं।
तो जैसे हम लोगों ने कनेक्टेड बॉडीज में जब एक्सीलरेशन हम लोगों ने कनेक्टेड बॉडीज में देखा था, तो हम लोगों ने क्या किया था, एक्सीलरेशन को रेफरेंस लिया था। जो भी कंपोनेंट एक्सीलरेशन के साथ सेम होता है वो पॉजिटिव, ऑपोजिट होता है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे ये ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एक्सीलरेशन होगा तो मुझको नेट फोर्स तो चाहिए। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक और एक्टिंग ऑन द बॉडी। So net force acting on the body F. Acceleration और mg sin थीटा क्या है, सेम डायरेक्शन में है। So mg sin थीटा और एक्सीलरेशन और फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। हम लोग को मालूम है अगर हम लोग किसी ब्लॉक को टेबल या किसी सरफेस के ऊपर रख देते तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट लेने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। नाउ ऑब्वियसली अगर ये ब्लॉक इस तरफ मूव हो रहा है तो इस तरफ जो फोर्स है वो ज्यादा होगा ना। अगर इस तरफ फोर्स कम होता तो ब्लॉक इस तरफ थोड़ी मूव होता। तो यहाँ पे mg sin थीटा ये फ्रिक्शन से ज्यादा है, सो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। नाउ f का फॉर्मूला क्या है, ma, सो f इक्वल टू ma इक्वल टू mg sin थीटा, व्हाट इज द फोर्स फॉर फ्रिक्शन, mu r। Again we know that ma equal to, from here we will get mg sin theta minus what is r, mg cos theta. So from here can you take m common, obviously you can take m common। if you take m common m cancel हो जाएगा, so what will be the acceleration of the block, you can take g common, ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin theta minus mu k cos theta। So this is the acceleration, अरे बाप रे, sorry हाँ, so this is the acceleration of this block sliding down the inclined plane। So I hope ये सब फॉर्मूला और ये सब प्रोसीडियर कैसे किसको लेना है समझ में आ गया। In the next video we will solve some numericals। अभी तो देखो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो गया है, so you have to give some extra time so that you can also practice this all and also the chapter that are going online, offline also। Okay, thank you।